Hello, namaskar, namaste. Welcome to the new podcast of Drimi Agro for next generations. I'm Beauty, founder of Drimi Agro. As we know, on this month, India is celebrating its 79th years of independence. We will raise here a new kind of flag for food freedom for our children. Whether we can give the freedom to our children to choose their own food. In this episode, we will discover what does actually it means when we say food freedom for children. As we talk to many psychologists, many psychiatric mothers, farmers, grandmoms, here we will discover that how a small change in their life, how a small change in their dining table can lead to a strong, healthy, and independent children. So here we'll celebrate our freedom in a new way, in a food freedom way. So now let's introduce our guest. Here, two different people from different genre have joined us, and I would like to invite Mrs. Sudha Chaudhary, and she is the owner of CDC Printer, and obviously she has written a nice book which is Bear for Bharat, and she is here because of she has taken care of two generations, and I think she can be the best way to tell us what our traditions has told us, has taught us about the food freedom. Welcome, Sudhaji. And our next guest is Deepika Singh. She is a clinical nutritionist for over 7 years, and she is here to better to tell you because she is serving the whole society nowadays because she is experiencing a lot of our social problems through her professions. So, welcome, Deepika. Thank you for inviting me. And this is a very special podcast for me because this is the topic you have chosen for today. It's something very special to me because I have always wanted to teach our next gen about healthy eating habits so that they can choose their own food. So, in a healthy way. Very nice. Thank you. We'll discuss all these things in this episode. So, first, we'll go like what is exactly when we say the food freedom? What is exactly food freedom means for the next gen? We'll both ask Deepika and Sudhaji also. Okay, so freedom as a nation, we all like our freedom. So I feel our children too deserve this kind of freedom. Freedom in choice of food, specially. Because if we give freedom to them, they will learn good, healthy eating habits. They will feel self confident. They'll have decision making skills, which Definitely. nowadays always what we see, people are running saying their kids don't eat this, don't eat that. But what about explanation? Who will give this explanation to kids? Who will teach them what is good for you, what is not, with scientific explanation, which is very necessary in today's world. That's true because children should give. I mean, it's not like that we always dictate them that you have to do this. So, this is kind of a guided freedom so that Exactly. they can feel Within that. boundaries. Like we will give them options within boundaries. Like if you keep your home environment very healthy, like you keep only foods and healthy foods and not junk foods, then whatever they will select, that would be a healthy eating habit, whatever they select. Like, for example, I can give, you can ask your child whether you want to eat chapati or rice with your dal or chicken or whatever. So, you are giving that sense of freedom to them that they can choose their chapati or rice or if anything else, idli, dosa, whatever. But you are giving them healthy options, not the junk ones. Yes, so parent has a pivotal role in these things. Then Exactly. how they will guide so that they can feel this way. So Daji, I'll come to you because see, when I brought up also, like this is strict from mom's side that you have to finish your plate. So you can't leave a single grain on the plate because it's like not healthy for family and not healthy for you also. So I'll ask how much it is importance nowadays, even if you think the traditional way of doing things. I believe that our traditions has a very rich culture which is scientific provenance also. Though we don't know that much as you can say much on this thing. So your thought on Namaste this. ji. Traditional food
जो आप बोल रहे हैं, हम लोग जो परंपरा से जो खाते हुए आते हैं, ये हमारे जीन्स में, हमारे ब्लड में, हमारे आ जाता है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है. बट नाउ द वर्ल्ड इज ग्लोबली कनेक्टेड. People, children, we all are traveling from one place to another and another and another. So if we stick to one food, what we have eaten, it cannot be possible. So we have to develop the taste of different that. बट इसके साथ भी दीपिका जी जो बोल रही हैं कि न्यूट्रिशन फूड जो हमको चाहिए, न्यूट्रिशन इज फिक्स्ड. बॉडी को इतना विटामिन चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतना सब चीज चाहिए. अगर हम मल्टी क्यूजन ले रहे हैं, उसके साथ में हमको ये विटामिन और मिनरल्स का ध्यान रखते हुए पेरेंट्स को बच्चे को इस तरीके से तैयार करें कि वो ये विटामिन भी मिले, उनको मिनरल्स भी मिले, प्लस हमारे उसको माने ब्लड में ही, उनके जीन्स में ही वो न्यूट्रिशन भी आता है, प्लस उनको वो टेस्ट बड भी मिल जाता है. क्योंकि हम दो परंपरा से जो खाते हुए आ रहे हैं, बच्चे को वो टेस्ट डेवलप हो जाता है और फिर वो अपने सरकमस्टेंसेस के हिसाब से वो अपना खाना चूज कर लेता है. ये फ्रीडम हमको देनी ही पड़ती है. दो परंपरा भी है और फ्रीडम भी है. तो हमारा कहने का मतलब है कि फ्रीडम बच्चे को देनी ही पड़ती है, लेकिन इतनी ही दे सकते हैं कि उसको वो सारे न्यूट्रिशन मिले. सो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी हम लोगों को चेक करना चाहिए. सो यू आर सेइंग वेरी रिलेटेड टू दिस थिंग इन मॉडल कल्चर ऑल्सो, कि आप जो बोल रहे हैं कि जो घर में हम लोग बनाते हैं और जो करते हैं उसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली वही पिकअप करना चालू करेगा. वो पिकअप कर चुका रहता है. हाँ. वो जीन्स में उसके पास है, लेकिन जब वो ट्रेवल करता है इधर उधर, तब उसको मुश्किल भी आती है कि उसका टेस्ट बड ये चाह रहा है. और ये तो उस समय पेरेंट्स का ये ड्यूटी बनता है कि उसको वो टेस्ट, वो न्यूट्रिशन फूड के बारे में जानकारी दी जाए. और ये जानकारी जनरली जैसे से एज बढ़ती है तो बच्चा अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से, जिस जिस एटमॉस्फेयर में जाता है उससे वो ले लेता है. तो यहाँ पर हम अगर नोटिस करते रहें कि वो बैड हैबिट्स में ना पड़े और गलत खाना ना खाए, वो हमको टाइम टू टाइम चेक करते रहना पड़ता है. हाँ, तो मतलब वही जो घर में हम लोगों का वो माहौल चालू रखना चाहिए कि आपको जो ऑप्शंस मिल रहा है वो ऑप्शंस भी आपका सही ऑप्शन ही आपको मिल रहा है. मतलब यू आर नॉट गेटिंग ए रॉन्ग ऑप्शंस टू इट, कि आपको वो फील भी हो कि हाँ आई एम गेटिंग फ्रीडम, कि मुझे तो ये बोला गया है. जैसे दीपिका सेठ की रोटी और सब्जी यही, या चावल और सब्जी, या दाल और सब्जी, तो मतलब जो भी ऑप्शन उनको मिल रहा है वो हेल्दी मिल रहा है. Exactly. But basically, you have to teach 5 fingers of nutrition, which we call generally like carbohydrate, which gives you main source of energy, जो कि आपको मिलता है दाल, रोटी, चावल, इडली, whatever grains. Then comes protein. तो protein आपका hormones, then immune system, then comes muscle wear and tear. Then comes fat, जो कि अभी हम लोग फैट मतलब सब कुछ अवॉइड करना है, बट इट्स नॉट ट्रू. फैट्स मतलब आप वही लेंगे जो हेल्दी फैट्स है, विच इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, विच इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन, फॉर जॉइंट लुब्रिकेशन. तो फैट को अवॉइड नहीं करना है. देन कम्स ब्रदर एंड सिस्टर्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. सो ये किससे मिलता है हमें? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से. ये भले ही हम लोग बोलते हैं कि उतना अमाउंट में नहीं चाहिए जितना कि हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये चाहिए, बट थिंग इज कि इसके बिना आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव ही नहीं होगा. तो यू नीड दिस. तो आप बच्चों को सिखाइए कि ये 5 चीजें इज लाइक अ मुट्ठी, इज लाइक अ फिस्ट, आपको ये अपने मील्स में रखना ही है. तो एंड नाउ दे आर फ्री टू चूज देयर फूड. लाइक एनी अनहेल्दी फूड यू कैन मेक हेल्दी. हाउ? लाइक I generally give permission to my kid to have pasta, but not simple only just pasta made of grain, but include chicken in that, include some vegetables in that, then it becomes healthy. तो ये फ्रीडम आपको देना है. ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही जंक फूड से आप उसको हटा दे रहे हो, बट गिव दैट फ्रीडम टू दैट. अगर आप उतना भी नहीं देंगे, आप बोलेंगे नहीं आज आपको तो यही खाना है, यही बना है, यही खाना है, नो, फिर वो आपको बैकफायर कर सकता है. आपसे अगर अलग हटके दूर जाके वो कहीं कुछ खा ही सकते हैं जंक फूड. दैट्स द थिंग. तो देयर शुड बी अ फाइन बैलेंस. आप अगर साइकिल चलाना सिखा रहे हो बच्चों को, आप सीट छोड़ोगे ही नहीं, तो वो बैलेंस करना सीखेगा ही नहीं. आप थोड़ा फ्रीडम देंगे तभी वो बैलेंस करना सीखेगा.
करेक्ट. सो दिस इज़ द वे यू आर सेइंग कि न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी उन लोगों को बताना चाहिए, जिसकी मॉम डिसाइड नहीं कर रहा है कि जैसे शी सेड लाइक तीनों 5 फिंगर्स का. तो इफ़ द किड्स ऑल्सो नो कि हमको ये बैलेंस करना है, सो दे ऑल्सो नो एट द एंड ऑफ द डे कि उसने कौन सा आज स्किप किया है, कौन सा नहीं लिया है आज. सो वो उसको खाना चाहिए अभी. तो इसके लिए वो मील फाइड नहीं होगा कि तुमको आज यही करना है. जैसे बहुत पेरेंट्स का हाँ होता है ना, तुमको आज खाना है, बट दे डोंट नो कि क्यों खाना है, क्यों मैम मुझे ये खाना है. हाँ, कि मैंने तो थोड़ा अच्छा वो तो सब्जी लिया था, सुबह भी सब्जी खाई थी, अभी भी फिर से सब्जी वही वाला. उन लोगों के लिए दाल सब्जी सेम ही होता है, क्यों खा रहे हैं अभी और इतना क्यों खाना है. सो इफ़ दे नो द न्यूट्रिशनल फैक्ट्स कि हाँ, कि एंड ऑफ द डे दे शुड नो कि मैंने सुबह सुबह से ये खाया तो मेरा ये कोटा कंप्लीट हुआ है, ये नहीं हुआ है. तो दे ऑटोमेटिकली दे नो वेरी वेल कि हाँ मुझे ये खाना है. सो दिस इज़ अब पेरेंट के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा कि वो मिल फाइट नहीं होगा, जो एक बहुत बड़ा हेडेक है हम लोगों के लिए. बस मम्मी के लिए नहीं, ये ग्रैंड मॉम्स के लिए भी है, क्योंकि ग्रैंड मॉम्स है तो उनके पास ही चले जाते हैं ना, आप खिला दो. ये तो लेकिन हम लोग के आदर्श की बात हुई कि हमको ये खिलाना चाहिए बच्चों को, हम ये, लेकिन जनरली ये चीज होती नहीं है. हम जिस सोसाइटी में बैठते हैं ना, आजकल दो ही चीज की चर्चा होती है, हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसा मेकअप कर रहे हैं, हम कैसे पहने हैं, इसकी चर्चा होती है. और क्या फूड बना, सुबह से क्या महाराज को बोलना है, खाना क्या बनाना है. और एक फैमिली में जनरली पहले हम लोग क्या थे, एक जनरेशन में एक फूड बनता था, दाल रोटी चपाती बनी, 2 सब्जी बनी, सब कोई 10 जन फैमिली में है तो 10 जन वही खाते थे. फिर वो जनरेशन, हमारे टाइम में वो जनरेशन थी. सेकंड हम जब आए, जब हमारे बच्चे आए तो वो थोड़ा कंटिन्यू रहा, लेकिन थोड़ा मॉडर्न भी आ गया. क्योंकि जब वो स्कूल जाने लगे तो आके मेरे को बोलता, मम्मी तुम रोज मेरे को पूरी सब्जी देती हो, उसने तो चाइनीज लेकर आया था. क्योंकि अब ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं जैसे peer pressure. यस, तो वो उसके मन में उसका ताल मखाना था, उसमें चिप्स था, उसका ये था, तो वो डिफरेंट टेस्ट डिमांड करता है मॉम से, लोग से कि ये टेस्ट है. तो हम लोग फिर उसको चेंज करने की चेष्टा करते हैं. लेकिन ये चेष्टा हम तभी कर सकते हैं कि हमारा बच्चा उसके लायक है कि नहीं. उसके लायक इन द सेंस कि आज हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है या बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो 3 चीज से बना है, वात पित्त और कफ. तो हमारा बच्चे अगर उसको कोई ऐसा है कि उसको बहुत सर्दी एडिक्शन है, उसको कफ ज्यादा हो रहा है, तो हमको वो फूड उसको अवॉइड कराना है. ये चीज का जो जैसा एग्जाम्पल हम एक साथ दे रहे हैं, इस तरीके से हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा बच्चा इस चीज को ले पाएगा. हम उसको बहुत तीखा खाना दे दे या बहुत खट्टा दे दिए तो वो बच्चा हमारा नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो सीख कर आया खट्टा खाना, लेकिन वो बच्चा नहीं ले पाएगा. तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो उसके हिसाब से खाना चूज करके उसको दे. अब डिपेंड करता है समय पर और वो बच्चा कैसे लेता है. बट दिस इज़ अ वेरी नाइस वन, बिकॉज हम लोग जब पीयर प्रेशर बोलते हैं, ये तो है कि वो बच्चा वो खा रहा है, ये मम्मी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. पर आपने जैसे डिस्क्राइब किया, ये तो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो खैर बचपन में हमेशा ग्रैंड मॉमी बोला करती थी, फिर उसके बाद फिर नहीं आया. दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू नो कि बच्चे को ये भी समझाना कि तुम्हारा बॉडी के लिए ये सही है. तो दिस इज़, ये नॉलेज भी काफ़ी ज़रूरी है अलॉन्ग विद द न्यूट्रिशनल और ये फैक्ट्स. अगर हम समझा के रखेंगे ना, ठीक है, बच्चा अभी टाइम बिंग नहीं समझेगा, लेकिन वो जैसे उसको लगेगा कि हम ये खाए तो मेरे को परेशानी हुई, क्योंकि खाना ऐसी चीज है, वो खा के सिर्फ टेस्ट बर्ड में गया, लेकिन उसका इफेक्ट अगर उसको खराब पड़ता है तो नेक्स्ट डे खाते समय खुद अवेयर हो जाता हाँ, है. वो बैड एक्सपीरियंस होने से कि हम ये आज खाए तो मेरा पेट में दर्द हुआ, तो वो खाते समय डर जाएगा कि नहीं हमको ये नहीं खाना है. तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस से भी बच्चा खुद भी डेवलप कर लेता है, खुद पेरेंट्स को भी इस तरीके से तैयार करना पड़ता है. और कुछ तो हमारे संस्कारों से बच्चों का एक तो बिल्टअप होकर ही आता है, उसका एक टेस्ट बर्ड बनकर ही आता है. क्योंकि हमने जो खाया ना, अभी भी आजकल शायद डॉक्टर्स कहते हैं जब हम लोग एज हो जाते हैं ना, तो हमको हमारा टेस्ट सब चीज चला जाता है, हमको कुछ खाने को मन नहीं करता. तब डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपने जो बचपन में खाया ना, वो जो आपको पसंद है अब वो खाइए. तो हमको जैसे दही रोटी खाना पसंद है, तो हम एकदम बुखार के समय भी हम वो दही रोटी खा पाते हैं. तो
माने उस समय, क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमने खाया हुआ है। अगर हमने जो खा रखे हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। रही अगर अभी हम बात चर्चा कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों को हम लोग को कैसे तैयार करना है? तो बच्चों को हम बोल रहे हैं 50% तो उसको जनरेशन से मिल जाता है, टेस्ट बट कैसे क्या खाना, और प्लस हमारे एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। नया जो डेवलप करते हैं, जो नए लोगों से वो मिलता है, नई जगह जाता है, वो धीरे धीरे वो उसके साथ एडप्ट हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा सिनेरियो चीज बनती है और बंद। इसमें हम उसको अलर्ट करते जाएं बच्चे को कि ये विटामिन्स नहीं है, तो धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर लेता है। जो बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है, ही ग्रो बेटर। और जो नहीं होता है मोस्टली वो खुद को भी नॉलेजेबल बनाना है फैमिली में, और बच्चे को भी वो वाला एडुकेट करना है कि तुम्हारे लिए कौन सा सही है। क्योंकि हम लोगों का दीपिका ज़्यादा बोल पाएगी, क्योंकि शी विल हैव एक्सपीरियंस ऑन की जो अभी है Right. नेगेटिव। For example, I can give you a case. मेरे पास एक बच्चा आया था अराउंड 7 years of age, a healthy boy. उसका ब्रेकफास्ट, डेली का ब्रेकफास्ट रूटीन क्या था? उसको चॉकलेट वाले क्रैकर्स या चॉकलेट सीरियल्स ही चाहिए मिल्क के साथ। तो उसके पेरेंट्स यही वरीड थे कि वो वेजिटेबल्स नहीं खा रहा, उसको हमेशा यही चाहिए। और उसके बाद शुगर रश दिखने को मिलता था कि उसमें तो ऑलरेडी हिडन बहुत सारे शुगर्स होते हैं, अलग अलग नाम से होते हैं, जो हम लोग को पता नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, आयल में देखते हैं कुछ एक हेल्दी टर्म डाल दिया है फ्रंट कवर पे, वो देखते हैं और पिकअप कर लेते हैं। लेकिन इंग्रेडिएंट लिस्ट पीछे जो लिखा रहता है, वी नेवर सी दैट। तो उसमें बहुत सारा शुगर रहता है। तो मैंने क्या सोल्यूशन दिया कि यू कैन टेक योर मिल्क, तुम उसमें ओट्स डालो एंड यू कैन चूज योर फेवरेट टॉपिंग्स बाय फ्रूट्स। एग्जाम्पल, तुम बनाना डालो, एप्पल डालो एंड लिटिल बिट ऑफ रेजिन्स फॉर दैट स्वीटनेस। तो 3 weeks के बाद मैंने देखा कि वो खुद से ही सेलेक्ट कर रहा है वो चीज। अब मेरे को ये फ्रूट डालना है, वो फ्रूट डालना है, वो खुद का ब्रेकफास्ट खुद ही की नहीं ये चाहिए। तो कम से कम वो पैकेज्ड फूड का जो हैबिट हो गया था, सीरियल प्रोडक्ट का, चॉकलेट सीरियल्स, तो उससे वो विन ऑफ कर पाया। this is also that's a success for me. So very nice, very nice. And this How is- to change the food habit Exactly. Accordingly. I see this is also example कि ये सक्सेसफुल इसके वजह से हो पाया बिकॉज शी हैज गिवन द फ्रीडम कि तुम अपने हिसाब से टॉपिक चूज Exactly. करो। Yes. तो Little bit उसको of freedom लगा I कि have आई कैन given. चूज Yes. कि ऐसा नहीं कि हर चीज में मम्मी डांट रही है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं Exactly. हो रहा है। और उसको मैंने थोड़ा सा अलाउ किया था, कोको पाउडर इफ यू वांट यू कैन मिक्स। तो उसको तुरंत तो हर हैबिट एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता है, थोड़ा बहुत आपको फ्रीडम देना पड़ेगा, बट वो लास्ट में देखिएगा कि उसका हैबिट ऑलरेडी चेंज हो चुका है एंड इज लाइकिंग दैट। एग्जैक्टली पर इसका जो है, जब भी हम फूड फ्रीडम बोलते हैं तब मॉम सेड कि अगर हम ये दे दें कि तुम ये सिलेक्ट कर सकते हो, उसका ये तो नहीं क्रिएट हो जाएगा कि हम अगर सिलेक्ट कर सकते हैं तो हम चिप्स में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम चॉकलेट्स में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट अबाउट बॉडी, आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रेन। कैसे फ्रीडम ब्रेन को इफेक्ट करता है? इज इट रियली हैपन्स कि अगर हम देंगे तो ये होगा? इज इट ट्रू? बहुत बहुत हद तक ट्रू। खाना हम लोग, हमारी संस्कृति में बताता है कि खाना ही ऐसा है, फूड ऐसा है जो हमारे बॉडी को तो बनाता ही है, हमारे मन और बुद्धि को भी डेवलप करता है। हम जैसा खाएंगे हम वैसा ही बनेंगे, ये बहुत हद तक। यहाँ तक कि हमारे संस्कारों में तो इतना बताया गया है कि हम जिस भाव से आपको खाना देंगे वो भी आपको इफेक्ट करेगा। सपोज अच्छा। आपको कोई आया कि आपको गुस्से से कोई पानी दिया, डेफिनेटली वो पानी आपको के बॉडी में लगेगा नहीं, उसका भाव आपके पानी में आ जाएगा। तो हम जिस फीलिंग से खाना देते हैं, ये बहुत, माने ये जाना हुआ साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हम जैसा भाव रख के देते हैं वो भाव उस खाने में आ जाता है। तो खाना बनाते समय हर समय हमारे परंपरा से दादी मनानी लोग से कि वो लोग प्रेम से देती थी। बिल्कुल, और हमारे ये चीज है ना, हम लोग प्रसाद भगवान को भोग लगा कर भी देते हैं। तो वो स्वच्छता रहती है कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो हम स्वच्छ भाव से, स्वच्छ प्रेम से लगा रहे हैं, और वो खाना ही हम परोसते थे। तो इस तरीके से वो मन और बुद्धि और पूरे एटमॉस्फेयर को, आदमी को पूरी तरीके से वो बना देता है। उसका बॉडी तो बनाता ही है, मन बुद्धि भी बना देता है। तो खाना हर समय हमको फीलिंग्स रखते हुए
देना चाहिए। हाँ, दैट आई ऑल्सो कैन रिलेट कि जब हम वो होते थे कभी ऑफिस का स्ट्रेस ज़्यादा हो गया तो घर में आए तो लाइक बेटी को जैसे अच्छा खा लो आज, ऐसे उस दिन ज़्यादा वो बदमाशी करता था खाने के लिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ आई एम नॉट गिविंग एज आई कैन कनेक्ट टू यू कि उतना इंटेंशंस वो ऐसा वाला नहीं है कि उसको खिलाना है, नहीं है वो सॉफ्टनेस नहीं रहा, सो दे ऑल्सो कैन कनेक्ट दिस थिंग, सो उस दिन ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सो यू हैव टू मेक योर माइंड क्लियर। बट वही सवाल अभी तक वही है कि अगर मॉम्स लोग पूछेंगे कि ये फ्रीडम देने के बाद कि वो लोग वो फ्रीडम को गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो माइंड में कैसे जाता है कि इज़ इट रियली सो कि वो माइंड में गलत जाता है फ्रीडम बोल के जब हम लोग देते हैं? नहीं, वो उसका मिसयूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है, अगर आप उनको फ्रीडम दे रहे हैं और प्रॉपरली समझा रहे कि ये क्यों आपके लिए नुकसान है, व्हाई इट इज हार्मफुल फॉर यू, वो बिल्कुल समझते हैं। किड्स दिस डेज आर वे स्मार्टर देन वी वर इन आवर जनरेशन। तो वो एक्सप्लेनेशन अगर आप दोगे तो वो कभी भी मतलब नहीं समझेंगे। और एक जैसे केस मैं बताती हूँ, एक गर्ल थी अराउंड 9-10 ईयर्स ओल्ड, उसका हैबिट था फ्रूट जूस पीने का। हाँ, पेरेंट्स भी उसको दे रहे हैं फ्रूट जूस थिंकिंग इट इज वेरी हेल्दी, लेकिन द अमाउंट ऑफ शुगर इन दैट उसको पता ही नहीं था। जब क्लिनिक में मैंने उसको शुगर क्यूज विजुअली अगर कुछ आप दिखाते हैं ना, तो उनके माइंड तक बैठ जाता है वो बात कि क्या सच में एम आई कंज्यूमिंग दिस मच ऑफ शुगर। तो हर आईज वेंट वाइड। तो उसके बाद उसने खुद मतलब फिर उसके बाद घर में फ्रूट जूस पीना शुरू किया उसने, पैकेज को हटा के। नाउ शी इज हैविंग होल फ्रूट, क्योंकि उसमें फाइबर मिल रहा है, आपको शुगर कंटेंट उतना नहीं मिलता है। फाइबर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और पैकेज जूस में क्या होता है? शुगर, ओनली शुगर। सो दे आर वेरी मच तो वेल नोन अगर अबाउट आप देयर उसको बॉडी आल्सो। प्रॉपरली एक्सप्लेन करिएगा, विजुअली दिखाइएगा, लाइक अभी के जनरेशन में हम लोग सब लोग इतने बिजी हैं, व्हाट इज लैकिंग? हम लोग कभी भी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, ग्रोसरी शॉपिंग, वेजिटेबल शॉपिंग, हम लोग लेके ही नहीं जाते बच्चों को। खुद ही ब्लिंकिट कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। अगर वो लेके जाएंगे, वो देखेगा, वो समझेगा, वो सोचेगा कि दिस थिंग्स आर हेल्दी, यही चीज हमें खाना है। हाँ, ये अगर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। बचपन में हम लोग भी जैसे जाते थे, मतलब खुद का गार्डन होता था। अभी तो खैर ये नहीं होता है कि Right. पापा के साथ आलू उगाने के लिए चले गए, सो हैविंग मम्मी के साथ कुछ वेजिटेबल्स भी वो अपने बनाए। अभी तो नहीं Right. होता है। आई एम वर्किंग ऑन दैट कि लोग ये करें एंड ये सोचे। दैट्स अ डिफरेंट प्रोजेक्ट ऑल्सो। एटलीस्ट वंस इन अ वीक अगर हम ट्राई करें, ये किया जा सकता है कि हम लोग लेके जा रहे हैं अपने साथ। एग्जैक्टली, जैसे बच्चों को हम लोग प्ले जोन में तो लेके जाते हैं, बिकॉज वी कैन हैव कॉफी रेदर देयर। वो लोग बच्चे खेलेंगे, विल हैव कॉफी। बट वो मेहनत वाला हो जाता है जब उसको गार्डन में लेके जाते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं। चलो बाई योर ओन वेजिटेबल्स, आज तुमको क्या खाना है, सो बाई योर ओन थिंग्स। दे विल सेलेक्ट देयर मील इन अ हेल्दियर ऑप्शन। एग्जैक्टली, कुछ फार्म में लेके जाए, फार्म में देखो कैसे की होता है, सो दे कैन सिलेक्ट कि वो एक रिश्ता, वो एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है सारे फूड के साथ कि चलो ये अपना है, ऐसे कर सकते। बिकॉज व्हेन आई वर्कड, मैंने बहुत सारा बच्चों के साथ काम किया है, तो आई हैव सीन बच्चों को जैसे वो उसको वेजिटेबल का नाम नहीं पता, वो ऐसे ही बताते हैं कि लंबा लंबा चीज़ होता है, एक ऑरेंज ऑरेंज चीज़ होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर उनको यही पता होता है जिसको वो जो उसे पसंद नहीं है, ठीक है। बैंगन पसंद नहीं होता है तो वो बैंगन पता है, पर उसको रीच गोट को कैसे बोलते हैं, जैसे झींगा को मोस्ट ऑफ 90% तो बच्चा मैंने देखा है उनको पता ही नहीं है कि वो क्या होता है। मतलब वो क्या खा रहे हैं उनको पता ही नहीं कि आई डोंट नो कि क्या खा रहे हैं। मम्मी कुछ देते हैं, आई डोंट लाइक। कभी कभी वो होता है कुछ स्लिपरी सिपरी होता है, कुछ ये वाला होता है, टेस्ट आता है, जिसमें सीड रहता है, वो वाला वेजिटेबल्स मुझे पसंद नहीं। क्या नाम क्या है उसका, दिखते कैसे हैं, वो नहीं पता। तो अगर ऐसा होगा तो वो रिलेशन कैसे क्रिएट होगा? तो ये वाला, ये ऑटोमेटिकली एक फूड फ्रीडम उन लोगों को दे सकते हैं कि वो खुद ब खुद सेलेक्ट करेगा उसको, अगर वो रिलेशन बिल्डअप किया जाए तो वी कैन वर्क ऑन दैट थिंग्स। बट इसके भी है और एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत सारा स्कूल में होता है कि मील्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसका क्या है, मतलब व्हाट डू यू थिंक कि वो क्या अच्छा वाला कुछ क्रिएट करता है क्या? इज इट हेल्पिंग किड्स फॉर बिल्डिंग देयर हैबिट्स? डेफिनेटली वो हेल्प कर रहा है। बच्चे एक साथ खा रहे हैं, सबको खाते हुए देख रहे हैं, एक ही जैसा खाना। और स्कूल में जो मील्स, आप डे बोर्डिंग का शायद बात कर रहे होंगे, तो उसमें जो दिया जाता है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड मील ही होता है।
तो आई हैव सीन चेंज इन माई ओन चिल्ड्रन कि पहले सपोज वो इडली खाती ही नहीं थी, बट स्कूल में मिलता था, सारे बच्चे खा रहे हैं, पहले नहीं खाया, कुछ दिनों तक नहीं खाया, बट फाइनली शी हैज लर्नड ईटिंग दैट। तो कहाँ से सीखा उसने? वो हेल्दी एक एनवायरनमेंट मिला उसको, सबको देखा उसने कि सब लोग खा रहे हैं तो मुझे भी खाना है, क्योंकि ऑप्शंस हमने दूसरा दिया ही नहीं। हम लोग घर में क्या करते हैं, अच्छा बेटा पास्ता नहीं खाना, मैगी खा लो, इजी वे फाइंड आउट करते हैं कि चलो ये खा लो, मेरे को भी कम होगा, मतलब। और वो बच्चे भी देखते हैं, बहुत सारा फ्रेंड्स के साथ उन लोगों को अच्छा भी लगता है। ये सवाल उठाने का मेरा ये मतलब था कि बहुत सारा पेरेंट ऐसे हमको पूछते भी है, जब जो सोचते हैं कि ऐसा वाला स्कूल में डाल जाए, क्योंकि वो इजी होता है पेरेंट के लिए, पर उसके दिमाग में ये भी रहते हैं कि मेरा बच्चा खाएगा कि नहीं खाएगा, उसका गलत कुछ डेवलप होगा कि नहीं होगा, कि जो हम नहीं चाहते वो अगर हो जाए तो क्या होगा। तो हाउ, मतलब ये इफेक्ट करता है, ये दिस इज द मोटो ऑफ द डिस्कशंस। इन्होंने जैसे बताया कि बच्चा जो नहीं खाता था लेकिन खाने की हैबिट पड़ गया, भूखा बच्चा तो रहेगा नहीं। स्कूल में अगर न्यूट्रिशन फूड दिया जा रहा है, 3 दिन नहीं खाएगा, 4 दिन नहीं खाएगा, लेकिन वो खाने की हैबिट डालेगा। तो एक गुड हैबिट है कि जब 10 जन एक साथ में एक ही चीज खा रहे हैं और न्यूट्रिशन उसमें मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली बच्चा उसको ले लेगा, वो खाना टेस्ट उसको मिल जाएगा। अगर ये सिमिलर चीज अगर हम लोग घर पर भी करें कि हम लोग 5 जन बैठ के अगर हम लोग न्यूट्रिशन के हिसाब से अपना खाएं, हाँ, दैट्स आल्सो नाइस, मतलब एक साथ खाना, क्योंकि आजकल घर में हर 2 बच्चा 2 डिफरेंट खाना खाता है, 2 डिफरेंट टाइम में खाता है, पेरेंट्स अलग टाइम से खाते हैं, बच्चा अलग से, एक सामूहिक खाना होता ही नहीं। तो अगर अभी जनरेशन को अगर हम लोग को अच्छा बनाना, अगर हम लोग आदर्श की बात है या कैसे बनाएं, तो हम लोग को एक साथ में खाना चाहिए, सिमिलर फूड खाना चाहिए, ताकि उसमें न्यूट्रिशन हो, ये चीज वैल्यूज रखते हुए खाना चाहिए। तो बच्चा अपने आप सीख जाता है। बच्चे को बोलकर हम कुछ सिखा नहीं सकते, हम करके सिखा सकते। हम वो सेम चीज खाएंगे तो बच्चा देखेगा हमको और वो अवश्य सीखेगा, थोड़ी टाइम भी लगे लेकिन वो सीखेगा। अगर वो कोई चीज बाहर से खा कर आता है, सपोज एग्जाम्पल कि बच्चा ने बाहर से पास्ता खा के आया, उसने बताया कि मेरा सम्मुख ऐसा ऐसे फ्रेंड ने पास्ता खाया, हम घर में वो पास्ता बनाएंगे और हम लोग 5 देखेंगे कि इसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, उस समय बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे। इस तरीके से एक्सप्लेन जब किया जाता है ना, तो बच्चा समझता है कि पास्ता खाने से अच्छा हुआ खराब हुआ। बच्चे हम लोग फिर डिस्कस करें, उस चीज को डिस्कस करेंगे तो बच्चा उसको आइडेंटिफाई धीरे धीरे डेवलप कर लेगा। इस तरीके से एवरी फूड, नॉट ओनली, मैंने पास्ता एग्जांपल दे रहे हैं, एनी फूड विच ही वांट्स टू ईट, let we all enjoy that thing. If it is good, we'll continue. If it is not good, we can drop that. Like that, बच्चे को डेवलप करना, बच्चे को माने टेस्ट बर्ड के हिसाब से, नए जनरेशन के हिसाब से, नई जगह के हिसाब से उसको कैसे हम बना पाएं, नए फूड को कैसे हम घर में लाएं, घर में लाने का भी ये एक तरीका हो, ताकि फिर बच्चे को गिल्टी नहीं फील होगी कि हम ये गलत खा रहे हैं या अच्छा खा रहे हैं। और इसीलिए बोला गया है कि अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, जब ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, अब तब इंट्रोड्यूस कुछ करेंगे ना, उनके ब्रेन मेमोरी में रह जाता है, जस्ट लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, वो कभी नहीं भूलते। इसीलिए आप देखे होंगे आपके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड या एनी अदर पीपल, वो अपने मॉम के हाथ का होम कुक्ड फूड कभी नहीं भूलते। वो आपके बनाए हुए खाने में भी वही ढूंढते हैं कि वो टेस्ट क्यों ढूंढते, क्योंकि बचपन में वो इंट्रोड्यूस कराया गया है, वही खाया गया है। अगर हम भी हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखेंगे, हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे, बड़े होकर उनके अंदर वो बैठ जाएगा कि मुझे यही खाना है, यही अच्छा है। तो सारे वाइफ्स को मोरलेस वो मैसेज मिल ही गया होगा कि उसके घर में झगड़ने की कोई बात नहीं है, कि ये अगर हस्बैंड बोल रहा है तो इसका साइंटिफिक रीजन, तो दैट्स अ गुड वे टू नो। सेम इंग्रेडिएंट्स है, हम भी वही बना रहे हैं, हमारी माँ भी वही बना रही है, लेकिन फिर भी वो बोलता है हमारी माँ के हाथ का खाएंगे। हम बना रहे हैं सेम मसालों के साथ, सेम रेसिपी के हिसाब से बना रहे हैं, लेकिन हाथ हाथ में टेस्ट होता है ना। हर
आदमी का अपना और ही टेस्ट इंग्रेडिएंट होता भी है। होता है कि कोई थोड़ा कम डाल रहा है, कोई थोड़ा स्पाइसेस ज्यादा डाल रहा है। हाँ, तो इसमें this मन आ differs. जाता है, इसमें हमारे अंदर के चीज आ जाती है, माँ का एक भाव आ जाता है, वो उसको टेस्ट को डेवलप कर देता है। हम लोग जिस भाव से बनाते हैं वो एक अलग भाव से डेवलप होता है। very तो जो nice. आप बताए ना कि खाना मन और बुद्धि को भी बनाता है, तो हाँ. खाना शरीर को बनाता है, अपने मन और बुद्धि को भी डेवलप करता है। हाँ, तो so there खाना is एक बहुत बड़ी चीज है संस्कृति में। आज के समाज में खाना हम लोग को एक अच्छा संस्कारी, अच्छे मन से बना हुआ खाना विद फुल न्यूट्रिशन खाना चाहिए। बच्चे अगर इस टाइप से खाना खाए तो देश की उन्नति माने हाँ. प्रोग्रेस में हेल्प करेगा। सो वी हैव कम टू ए पॉइंट कि जहाँ पे हम लोगों को ये फील तो हो रहा है बच्चों को फ्रीडम देना तो चाहिए, पर वो इन शॉर्ट अगर हम बोलेंगे तो दैट इज़ ए गाइडेड फ्रीडम, सो दैट कि उन लोगों को फील हो कि हम लोगों को फ्रीडम मिल रहा है, सो दैट वो लोग वो कॉन्फिडेंस उसको मिले कि लाइफ में हम खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। नहीं तो बच्चा क्या होता है, हर चीज़ में उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल दोनों ही एस्पेक्ट वी हैव सीन, एंड वी हैव सीन कम्प्लीटली देयर इज़ नो फाइट एज वी ऑलवेज थिंक देयर विल बी अ फाइट बिटवीन। ये बहुत लिंक्ड है एंड बहुत रिलेटेड है हम लोगों को जो सिखाया गया है बचपन से, और अभी साइंस जो बोल रहे हैं मॉडर्न फैक्ट्स में, दे आर मोर देन 90% सिमिलर। जस्ट हम लोगों को जानना बाकी है। वी हैव टू एडुकेट आवर सेल्फ एज वेल एज आवर चिल्ड्रन। तो इसमें क्या करेंगे सुधा जी और दीपिका, हम लोग एक छोटा सा शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे कि जहाँ पे हम लोग जिन लोगों का बहुत सवाल होता है कि ये वाला कुछ रॉ सवाल भी है जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि ये प्रॉब्लम है उनको तो कैसे उसको सॉल्व करें। तो लेट्स सी अगर हम उन लोगों को कुछ सल्यूशंस दे पाए कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, अगर वो यही चाहते हैं कि चलो चलिए आज हम अपने बच्चे को आज से फूड फ्रीडम देते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, तो मेरा ये प्रॉब्लम है, क्या क्या हो सकता है उसका पॉसिबल कुछ हम लोग सोचेंगे। तो ये सवाल आप दोनों के लिए होगा क्योंकि एज हम लोग वो मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल्स दोनों कवर कर रहे हैं कि ये दोनों वे में, क्योंकि ये शो सिर्फ मॉम्स के लिए नहीं है, ये ग्रैंड मॉम्स के लिए भी है। क्योंकि बच्चे बस मॉम्स ही नहीं देखते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी देखते हैं, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और आजकल तो बहुत ज़्यादा होता है। तो लेट्स सी। सो मेरा पहला सवाल है कि व्हाट्स द रिस्क ऑफ फोर्सिंग किड्स टू ईट। अगर हम बच्चे को बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे तो उसमें रिस्क क्या क्या आ सकता है। ये तो बहुत होता है कि अभी खाना अभी का अभी फिनिश करना है 5 मिनट में, एक भी कुछ नहीं रहना चाहिए। आई हैव ऑल्सो फेस दैट। तो उसका क्या रिस्क है? दैट किड बिकम्स फसी ईटर। उसको हिंड्रेंस हो जाएगा उस फूड से, वो और भागने लगेगा, स्केर्ड ऑफ हो जाएगा उस पर्टिकुलर फूड आइटम से। तो उसको आप चॉइस दो ना, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि चलो विच वेजिटेबल्स यू वांट टू ईट। धीरे धीरे जब हम ये इंस्टिल करेंगे वो सारा वेजीज खाएगा, बट पहले शुरुआत तो करिए, आप उससे उसका चॉइस पूछिए। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वो 5 फिंगर वाला रूल, वो उसको बताइए बार बार, ताकि वो समझ में आए कि हाँ मुझे अपने फूड में इन चीजों को इंक्लूड करना है। फिर वो अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे। आप उसको पैकेज्ड फूड आइटम्स मत दीजिए चॉइस के लिए, ओनली हेल्दी फूड आइटम्स रखिए एंड दे विल सेलेक्ट। हाँ, इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। और रिस्क में जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चे को अभी तो कर लेते हैं, जैसे मेरे केस में भी हुआ कि बच्चे जब छोटे थे तब तो है, पर ज़बरदस्ती से क्या हुआ है, मतलब पेरेंट्स को उतना भी नहीं होता है कि चलो खाना खिलाना क्योंकि स्ट्रेंदी बनाना है बच्चे को। तो जब हम टीन में गए ना, तब मेरा वो था कि इतना दिन जो नहीं खाया ना, अभी वो चाउमीन वाला स्ट्रीट का खाते हैं, ठीक है। तो वो कोल्ड ड्रिंक्स एंड चाउमीन वो चालू हो जाता है, बिकॉज इट्स ए रिस्क, क्योंकि ये फोर्स फीडिंग का एक एग्जैक्टली बाद में उनको लगता है कि अब तो मेरे कंट्रोल में है, हाँ, तो मैं ये खुद खरीद के खाऊं। तो ये एक चीज है। तो ट्रेडिशनल वे में भी ऐसे ही हुआ ट्रेडिशनल होगा। वे में अगर हम अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये चीज खाए, सपोज एक पर्टिकुलर चीज हमको उसको खिलानी है, ये वेजिटेबल उसको खिलाना है, तो हमको उस बच्चे को उस वेजिटेबल की एक स्टोरी वे में उसको अगर हम समझाते हैं कि ये स्टोरी समझाते हैं कि ये वेजिटेबल इसने खाया था, उसका इंटेलिजेंस इतना बढ़ गया था,
अगर तुमको इतना इंटेलिजेंट नहीं बनना तो मत खाओ। अगर तुमको इंटेलिजेंट बनना है, तुमको शार्प तुम्हारा बुद्धि हो, तुम फास्ट आंसर कर सको, तुम हेल्दी हो सको, तो तुमको ये चीज खाने से तुमको तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहेगा। नाउ इट्स योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डू। तो फिर उसको वो चॉइस अगर हम रख देते हैं कि इसमें 3 तरीके का टेस्ट है, ये है, तो बच्चा अगर वो समझ लेता है तो फिर वो जल्दी से ग्रैब करेगा, अरे हमको तो इंटेलिजेंट बनना है, हमको तो बहुत स्मार्ट बनना है, तो वो खाएगा। तो हम किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, हम उसको समझा सकते हैं। और वो कैसे समझाएं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन माई सेल्फ, डिपेंड ऑन द चाइल्ड। वो किस एज ग्रुप का है, सपोज वो छोटा बच्चा है तो वो वैसी बात समझेगा, थोड़ा बड़ा बच्चा है तो वो वैसी स्टोरी समझेगा, डिपेंड्स ऑन दैट। मतलब ये दिमाग में बैठ जाता है, माइंड में फूड के साथ एक हो जाता है कि फ्यूचर में भी वो लोग कनेक्ट करेंगे, ऐसे ही फॉलो करेंगे, ऐसे ही कनेक्ट करेंगे कि ये खा रहे हैं तो इससे ये बेनिफिट हो रहा है, ये खा रहे हैं तो ये, क्योंकि वो अपना चॉइस बन गया है। तो हम लोग जब भी बच्चों को खिलाते थे ना, हम लोग हर समय बच्चों को स्टोरीज सुनाते थे। वाइल ईटिंग ऑल्सो वी मेक देम रीड, हम लोग कथा सब सुनाते थे कि उसने हनुमान जी ने ऐसा खाया, उसने भीष्म पितामह ऐसे थे, तो भीम इतना गट करके पी लेता था तो वो कितना स्ट्रांग बन गया। तो वी ऑलवेज रिलेट विद द हमारी पुरानी स्टोरीज से, कथाओं से बच्चा उस तरीके से डेवलप होता था। तो फूड भी डेवलप होगा और अपना नॉलेज भी, उसकी नॉलेज भी डेवलप होती थी। तो इसलिए हम फोर्स कभी नहीं कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन देम, और वो एक्सप्लेनेशन उसके अंदर तक चला जाता है एंड वो हर जगह ऐसा इसको लाइक अभी बच्चे सुपर हीरोज के फैन हैं, तो उनको वैसा स्टोरी बना के हम बता सकते हैं कि आप ऐसा खाओगे तो उस सुपर हीरो की तरह आप बनोगे। तो ठीक है, विल गो टू आवर नेक्स्ट थिंग कि व्हाट रोल्स डू पेरेंट्स प्ले इफ किड चूज फूड। अगर पेरेंट्स को क्या मतलब करना चाहिए, उसका रोल क्या है जब बच्चे अपना मतलब सोच लिया चलो बच्चे को देना है, तो पेरेंट का क्या रोल है? बस बच्चे का तो पेरेंट्स का सबसे पहले देखिए बच्चे कहाँ जाते हैं, कब खाते हैं, वो एक तो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे सोशल बड़ी पार्टीज में नहीं जाते हैं, बच्चे जाते हैं बर्थडे पार्टीज में। तो पेरेंट्स का रोल है, हर एक पेरेंट्स का, कि बर्थडे पार्टी में जो कि आज की चलन हो रखी है, वी गिव मैक्सिमम जंक फूड, एंड बच्चे बर्थडे पार्टी में जाने के साथ साथ वो जंक फूड खाने के लिए भी जाते हैं। तो दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि हम बर्थडे पार्टी में ले जा रहे हैं, इज दो इट इज अ पार्टी, उसमें हम थोड़ा फूड इस तरीके से कंट्रोल करके दें ताकि वो हेल्दी हो बच्चे के लिए, और उसी फूड को हम लोग उसको हेल्दी वे में जो है उसको हेल्दी वे में भी हम बना सकते हैं। जैसे न्यूट्रिशन आप बता पाएंगी कि हम कैसे उसको उस फूड को वैसे बना सकते हैं। और इन एडिशन टू दिस थिंग आई वुड लाइक टू इंक्लूड वन मोर पॉइंट कि बर्थडे पार्टीज, मतलब अभी स्कूल में अगर हम ले ले तो एवरीबॉडी इज सेलिब्रेटिंग बर्थडे बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग चॉकलेट्स। तो मैं देख रही हूँ मेरे डॉटर के बैग में एवरी ऑल्टरनेट डेज चॉकलेट आ रहा है। तो ये ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सी, अगर जंक फूड वंस इन अ वाइल हुआ इट्स फाइन, ठीक है, वो भी हमें एक्सपीरियंस कराना है बच्चों को, बट ये अगर एवरी डे हैबिट बन जा रहा है देन दैट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि वो शुगर इनटेक कर रहे हैं, बॉडी में शुगर जितना ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू टो, उतना कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। शुगर क्रेविंग भी बढ़ रहा है, शुगर क्रेविंग बढ़ रहा है, शुगर रश होता है, बोलते हैं बच्चे सुपर एक्टिव हो जाते हैं, फिर शुगर रश होता है, तो इसके लिए और उनका जो है कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले हमें शुगर इनटेक को लिमिट करना पड़ेगा। और अगर पैकेज फूड भी दे रहे हैं, आई कैन टेल यू मोर देन 21 नेम्स ऑफ शुगर, जो ये मार्केटिंग इंडस्ट्री है उसको हाइड करने के लिए आपको शुगर नहीं लिख के देता है, माल्टोडेक्स्ट्रीन, स्टार्च, फिर अगर हनी ले ले वो भी शुगर ही है। लोग सोच रहे हैं जैगरी हनी दे रहे हैं तो कुछ बहुत हेल्दी कुछ दे रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। अल्टीमेटली आपका बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है एज अ शुगर। तो आपको ये पहचानना है कि वो शुगर के नाम पे आपको कुछ और नाम से दे रहा है, बेच रहा है, दे आर सेलिंग टू अस, और हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये शुगर रेस्ट्रिक्शन करना होगा। बाकी तो चलो ठीक है, फैट्स भी जरूरी है, कार्ब्स भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, विटामिन्स मिनरल्स चाहिए। अगर एक टाइम पे तुम लोगों को ट्रेडिशनल में भी बोला जाता है कि बच्चे को इस टाइम तक कुछ शुगर देना ही नहीं है, एग्जैक्टली सॉल्ट एंड शुगर। अभी डॉक्टर भी बोलते हैं वही वाला कि नहीं देना है कुछ। बच्चा जब खाया ही नहीं होगा तो वो ढूंढेगा ही नहीं वो टेस्ट।
तो वो ज़रूरी नहीं होता है। सो पेरेंट को बहुत मतलब सोच समझ के उसको देखना चाहिए कि उसका टेस्ट बड कैसे बिल्ड हो रहा है, कि वो अपने आप अपना चूज़ करेगा, बाद में वो प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू दीपिका। एंड एक बहुत बिग सवाल है कि बच्चों को क्या एक फ़िक्स टाइम में खाना चाहिए? क्योंकि जॉइंट फैमिली में भी होता है कि सब लोग कब आता है, कौन आता है पता नहीं, 10-12 बजे खाते हैं। और मॉडर्न में भी होता है कि पार्टीज़ में रात में खाना हो जाता है, तो उस सब का होता है कि कैसे खिलाएँ? 7 बजे हम लोग अलग खा रहे हैं, वो लोग अलग खा रहा है, और नहीं खा रहा है अगर बच्चा, तो भी उसमें क्या प्रॉब्लम है? खाना तो खा रहा है। सो शुड चिल्ड्रन ईट एट फिक्स टाइम ओनली? आप दोनों के लिए सवाल होगा, क्योंकि ये दोनों तरीके से कवर होगा। हमको टाइम फिक्स करनी पड़ेगी बच्चों के हिसाब से, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। अगर उसको 8 बजे सोना है तो हमको उसको 7 बजे डिनर देना ही होगा। तो विल ट्राई टू, वो फिक्स तो ऑटोमेटिकली हो गया, बच्चे के लिए तो टाइम फिक्स हो गई। विल ट्राई कि अगर हमारे दूसरे मेंबर्स जो उसके साथ खा सके, कोई 1 या 2 मेंबर भी खाए, तो एटलीस्ट फैमिली फूड हर समय बच्चों को भी हेल्प करती है। एवरीथिंग इट विल बी इन कंट्रोल अगर हम लोग बैलेंस करके उस टाइमिंग फिक्स करें तो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर टाइम फिक्स किया जाए तो खाना। अग्रीड। पहले जो हमारा सिस्टम था ना कि सनराइज टू सनसेट, उतना तक ही लोग खाते थे। बट हम लोग विद डेज पास बाय, हम लोग उसको लेट करते गए। बट बच्चे को सुबह स्कूल भी जाना है, तो हमें उनको टाइम पे भी सुलाना है। और वो सोने के जस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोग खा रहे हैं और इमीडिएटली सोने चले जा रहे हैं। देयर शुड बी अ गैप ऑफ मिनिमम 2 आवर्स। तो हमें वो रूटीन तो फिक्स करना ही पड़ेगा। हाँ, तो उसका वो टाइमिंग फिक्स करना बहुत ज़रूरी है कि आपका इधर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लो, या ऐसा कुछ करो कि बच्चा सही टाइम पे वो अपना खाना खाए। दैट्स अ नाइस वन। और एक बहुत बिग सवाल लोग पूछते हैं कि ये जब फूड फ्रीडम बोल रहे हैं, ये बेकार की चीज़ें होते हैं, ये बहुत वेस्टर्नाइज आइडिया है। वहाँ पे जो लोग जो खाते हैं मतलब फास्ट फूड, उनके लिए ये ठीक है कि हम बर्गर चूज़ करें या फ्रेंच फ्राई चूज़ करें, पर हम लोगों के लिए ये वाला कुछ है नहीं। तो क्या कह सकते हैं कि क्या आप ज़्यादा बोल सकते हैं इसमें कि या कि कभी हम लोगों का इंडियन में नहीं था ये? माने आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम हाँ, मतलब फूड फ्रीडम जो हम बोलते हैं कि बच्चों को अपना चॉइस, कि जैसे होता है ना कि गाँव में ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में अगर हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पे ऐसा फूड फ्रीडम बोल के ऐसा कुछ मतलब हो सकता है कि उनमें से है, क्योंकि उनका फूड फ्रीडम वहीं से चालू होता है जब वो लोग फार्म में जाते हैं, पर जब खाने का प्लेट में नहीं होता है। ठीक है, तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि लोग फूड फ्रीडम को जो सोचते हैं, जब हम बोलते हैं कि बच्चों को खाना, जैसे 2 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं, लाइक आपको कौन सा फ्रूट पसंद है, तो वो भी एक फ्रीडम ही हुआ। ऐसा नहीं कि हम अब उनको बोल रहे हैं कि जे तुम जाओ और सुपरमार्केट में जाओ, जो तुमको मर्जी आए उठा के खा लो। दैट इज़ नॉट ए फूड फ्रीडम, दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग। तो उन फूड लोग फ्रीडम विद इन बाउंड्रीज, हाँ, विद इन सेट बाउंड्रीज। तो वही वाला, ये क्या वेस्टर्न आइडिया है? क्या हम लोगों का इंडियन आइडिया नहीं है? ये कभी नहीं था? क्या हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं? इंडियन आइडिया पहले से हम लोग में ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग के फिक्स इंग्रेडिएंट्स थे, फिक्स हम लोग के दाल चावल जो पल्सेस एंड फिक्स था। हम लोग का खाना भी बहुत कुछ फिक्स था, टाइमिंग भी बहुत फिक्स थी। अब तो इतना फास्ट सब चीज चलने लगा है, टाइम इज ऑल्सो रनिंग। तो हम लोग को तो हम लोग को अभी रेडी टू ईट खाना मिलने लगा, वेराइटीज ऑफ खाना मिलने लगा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। हम लोग के खाने की टाइम भी नहीं है। तो इस माहौल में खाना कैसे बनाएं, कैसे खाएं, यही एक तो हम लोग का डिस्कशन का है। यही एक प्रॉब्लम है कि हम खाना कैसे बनाएं, कैसे खाएं, बच्चों को कैसे तैयार करें ताकि बच्चा इस माहौल में कैसे बन सके। तो इस माहौल में बनने के लिए हमको अपनी परंपरा को अगर हम थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे ना, तो इस चीज को हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे। परंपरा कि हमारे सीरियल्स यही थे, हम उस चीज को हम वैरायटी वे में बना सकते हैं। आज अगर बच्चा खा रहा है कि उसको यही सीरियल चाहिए, सीरियल तो फिक्स वही है, बाहर हो, वेस्टर्न हो या इंडियन हो, सीरियल्स मिक्स सिमिलर है।
तो उसमें कैसे हम लोग चेंजेस करें, डिपेंड्स ऑन द घर टू घर। एक तो आपके घर में एक तरीका है, हमारे घर में एक तरीका है, वो अपने घर के हिसाब मतलब से वो मेन तरीका है। इंग्रेडिएंट्स ये रखना है आपको, उसमें आप वैरायटी लाओ, उसमें आप उसके टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंगली जो चेंजेस करना है वो करिए। बट न्यूट्रिशन बोले तो आपको वो सारी चीजें देनी है अपने बच्चों को। तो एज लॉन्ग एज आपका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, वी आर ओके विद इट। वेरी नाइस, थैंक यू। ये नेक्स्ट में जाएंगे कि पेरेंट्स ज़्यादा पूछते हैं कि मेरा बच्चा खाता ही नहीं है और कंप्लीटली रिफ्यूज टू वेजिटेबल्स, तो क्या करना है? क्या नहीं, कुछ नहीं खाता, उसको जो बोलते हैं वो नहीं 2 दिन खाता। खाना ना दो, तीसरे दिन खाना खा लेगा। दैट माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवर ईटिंग हम लोग उसको हर समय देते रहते हैं। अभी 10 बजे खा लिया, 11 बजे उसको जूस देना, 12 बजे उसको लंच देना है, 2 बजे वापस उसको दही देना, 4 बजे उसको एक तो स्नैक्स देना। डोंट गिव। हम जितना 3 मील खाते हैं, 2 मील खाते हैं, स्टिक टू दैट, तो बच्चा जरूर खाएगा जो भी चीज दिया जाए बच्चे के लिए, क्योंकि वो लोग ढूंढते रहते हैं अभी ये खाना है वो खाना है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सोचते हैं बच्चा है ठीक है चलो खा लेते हैं, पर एक्चुअली दैट्स बैड। We have to and bring make that in varieties with discipline. that vegetable, maybe कि कोई चिल्ला बना रहे हो उसमें वो वेजीज यूज कर दीजिए, कुछ वैरायटी इंक्लूड करिए, या फिर खिचड़ी बना रहे हो तो उसमें वेजीज डालिए ताकि उसका वेजिटेबल का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। हाँ, और उसका वो वेजिटेबल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है कि क्या खा रहे हैं, नहीं तो कभी भी नहीं खाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है व्हाई कि ऑरेंज फूड, चाहे वो कैरेट हो, पंपकिन हो, व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर योर आईज। अब तो वो जरूर खाएगा, वो उसको इंक्लूड करेगा कि उसको वेजिटेबल के साथ थोड़ा रिश्ता बनाओ कि चलो उसको मटर छिलने दो, वो वो तो अब चला ही गया है, वो नहीं हुआ है। उसमें भी फ्रोजन पीस आने लगा है पैकेज करके। तो कोविड में हम वही करवाते थे, मशरूम कटो, जो काट सकता है बिना चाकू के भी मशरूम कट सकता है, और ये वाला। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम आएंगे कि हाउ डू आई स्टॉप माई चाइल्ड फ्रॉम ओनली वांटिंग स्वीट्स। बहुत सारा बच्चे ओनली स्वीट्स खाते हैं कि हमको वही स्वीट्स ही पसंद है, घूम फिर के चॉकलेट्स में, उसमें एज ए न्यूट्रिशनिस्ट ये वंस इन अ वीक रूल आप कर सकते हो कि अगर आप पूरे वीक अच्छे से फॉलो कर रहे हो, सब कुछ मान रहे हो, हाँ, आप खुद के बॉडी को ये रिक्वायरमेंट है वो दे रहे हो, तो वंस इन अ वाइल इट्स फाइन। अगर अब बच्चे को पूरा ही डिप्राइव्ड कर देंगे तो वो बैकफायर करेगा। तो सिंस हमें वो बैलेंस भी बनाना है, थोड़ा थोड़ा। अब लोगों का तो बहुत सारा ऐसे है भी, मतलब है ना, बहुत सारा फ्रूट्स भी है, जैसे फ्रूट कास्टर, ये सब तो हम लोग बनाते थे, मतलब दैट इज थोड़ा थोड़ा हम थोड़े कम बिलीव करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते ही आज एक वीक में 1 दिन, फिर कल डिमांड करेगा 2 दिन वीक में, 3 दिन वीक में। अगर स्टॉप है तो उसको समझा के बुझा के उसको स्टॉप कर देना। इफ स्मोकिंग इज बैड तो बैड, उसको कभी नहीं लेना है। इफ इट शुगर इज बैड तो बैड, इसको नहीं लेना है। वो पॉइंट तो है, हम उसको शुगर का जब भी बता रहे हैं कि क्या वो इफेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी पे, वो खुद ही कम कर देगा। बट सिंस आप बच्चों की बात कर रहे हैं, तो चॉकलेट अगर उसके पूरे सोशल सर्कल में सब लोग खा रहे हैं और अब उसको बिल्कुल भी खाने नहीं दे रहे हो, तो वो उसको भी क्रेव करेगा। तो वंस इन अ वाइल 1 स्लाइस ऑफ चॉकलेट वोंट हार्म दैट मच। इससे मतलब ये है कि एक ये भी चेंज लाना पड़ेगा, जो हम लोगों का ये भी होगा कि सारा पेरेंट अगर ऐसे ही सोचते रहे, जैसे हम लोगों का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे हम लोग डिस्कस किए कि बर्थडे में जाके प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हर पेरेंट बर्थडे में रखे ही नहीं तब क्या होगा? तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोगों को सोचना ही नहीं पड़ेगा। सो वी हैव टू मेक द चेंज कि ये हम लोगों को करना है। तो ये पूरा एक चेंज हम लोग कर सकते हैं कि आपका जो जैसे बोल रहे हैं कि नहीं देना है, तो ये अगर सब लोग समझ जाए, एक्चुअली नहीं देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ये हो रहा है ना, कुछ खा रहे कुछ नहीं खा रहे, तब तो चैलेंज आ जा रहा है पेरेंट को। और ये चेंज आ रहा है, क्योंकि कोलकाता में ही मैंने एक स्कूल का रिपोर्ट देखा, उन्होंने बैंड कर दिया कि स्कूल्स में बर्थडे पार्टीज में आप चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सिमिलरली आवर स्कूल्स कैन डू दिस, वी एज अ पेरेंट कैन डू दिस, तभी ये चेंज आएगा। तो अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन को अगर हमको सुधार करना, फूड हैबिट्स से ही लेते हैं, अगर हमको फूड हैबिट्स में उसको सुधार करना है, तो उसको सुधारने के लिए फर्स्ट पेरेंट्स को सुधरना होगा, उनका फूड हैबिट्स चेंज करना होगा। हमको चीज, अगर हमको वो टीवी नहीं देखना है तो हम भी नहीं देखेंगे, तब बच्चा नहीं देखेगा। एग्जैक्टली वो फूड हम वो बच्चे को देंगे, तो हमको सब मॉम्स को मिलकर
वो पहले फैमिली में हमको ये फूड हैबिट्स को डेवलप करना होगा, फिर ग्रेजुअली हम लोग अपने फ्रेंड्स ग्रुप में करें, जैसे समाज में करें, सोसाइटी में भी अगर फूड हैबिट्स वैसी बनेगी, और वैसे ही जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, जैसे जैसे बड़ी फील्ड होगी, तो वो फूड हैबिट्स चेंज होगी और बच्चा वैसे बनते जाएगा। अगर हम उस बच्चे को, एक सोसाइटी से अलग हटकर बच्चा नहीं है, बच्चा सही एक बात। सोसाइटी का है, तो सोसाइटी में वो जो देखेगा उसको अडॉप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो टू चेंज द हैबिट ऑफ फूड हैबिट्स फॉर द चिल्ड्रन, किड्स का अगर चेंज करना, वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ, वी हैव टू चेंज आवर सोसाइटी, वी हैव टू मेक आवर सोसाइटी लाइक दैट, टू मेक अ बेटर फ्यूचर, टू मेक अ बेटर चाइल्ड, टू मेक मतलब ये सबको करना है, ये किसी एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक का नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। वी कांट ओनली चेंज आवर चाइल्ड एंड उसको वो करना है, अकेले कोई नहीं कर सकता है। वी हैव टू डू, मतलब सबको मिलके करना है, एंड होपफुली चेंज कर पाएंगे कभी। बिल्कुल होगा। इसी का मतलब हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि चेंज हो, कि सारा हम लोगों का जो ट्रेडिशनल वे भी है, मॉडर्न वे भी है, दोनों ही का देखिए मकसद एक ही है कि दोनों एक ही सोचते हैं कि वेल बीइंग ऑफ चाइल्ड ब्रेन एंड बॉडी, इसमें किसी का फाइट नहीं है, किसी का फाइट नहीं है। तो ये सब चाहते हैं, पर वी हैव टू वर्क लिटिल मोर हार्ड, कि थोड़ा सा करना है, क्योंकि बात ये आ रहा है हम लोगों का नेक्स्ट जनरेशन का, जो हम लोगों का मतलब मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। वर्क है, सब कुछ है, फैमिलीज है, सब कुछ है, पर जब बात नेक्स्ट जनरेशन की आती है, तब दैट इज द मोस्ट प्रायर थिंग टू अस, ये होना चाहिए। एंड प्रॉब्लम इज अभी आसपास देयर इज प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्टाग्राम रील्स, इधर उधर, एवरी अदर पर्सन यू विल फाइंड कि वो न्यूट्रिशनिस्ट खुद को दिखा रहे हैं, बन रहे हैं, मे बी उनका 4-5 किलो कम हो गया इसलिए, बट प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या है ये हम सबको समझने का बहुत जरूरत है। और अपने बच्चों को भी समझाएं, ताकि वो अगर एक बार समझ गए ना, तो वो खुद ही अपना ख्याल रख लेंगे, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। सही बात है। तो मतलब अपने बच्चों को भी फोर फ्रंट में लाना चाहिए, कि उसको वही वाला समझाना चाहिए जो हम लोग एग्जैक्टली, सोच डोंट रहे बिलीव हैं। एनीथिंग एल्स, कि जो अभी ट्रेंडिंग है वही खिलाए। अभी सपोज एवोकाडो टोस्ट, हाँ, एवरीवन इज मेकिंग एवोकाडो टोस्ट। अरे अपने इंडिया में भी इतना कुछ है, यू एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस। मैं मेरा और एक पॉडकास्ट में यही बताई थी कि हम लोगों का लोकल वेजिटेबल्स में इतना कुछ है, पर लोगों को मतलब somehow they are so attracted with these things, new western things, कि उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है या वक्त नहीं मिलता है उतना जानने का, पर they should actually। तो और अच्छा भाई आपका है न्यूट्रिशन में, जब अपनी बात करते हैं ना, कि हमारी सराउंडिंग्स में जो डेवलप बनता है, जो मैंगो, अगर हम मैंगोज खा रहे हैं, बॉम्बे में हाफूस आम मिलता है और यहाँ पर लेंगड़ा और हमारा हिमसागर है, तो हमको डाइजेस्ट होगा हिमसागर और लेंगड़ा है। हम हाफूस लाते हैं, लोकली जो है वो फूड ही डाइजेस्ट होता है। तो हमको ये भी ध्यान में रखते हुए खाना गाइड करना चाहिए, खुद को करना चाहिए कि हम लोग लोकली फूड पर ज्यादा प्रेशराइज करें। तो ज्यादा वही हो रहा है जब हम अच्छे कोई खाता ही नहीं। हाँ, जब हम बच्चे के लिए सोच रहे हैं, एक्चुअली दिस इज आल्सो पॉकेट फ्रेंडली, मतलब हम लोग जबरदस्ती कल्चर से हम इम्पोर्टेड फ्रूट्स मंगा के दे रहे हैं। लीची यहाँ का लीची नहीं, हमको तो बाहर का लीची खाना है, तो हमको नेक्ट्री नहीं खाना है। अरे यहाँ का नहीं है, वो बाहर का स्टोर होके कोल्ड स्टोरेज से आया है, लेकिन हम बच्चे को दे रहे हैं कि ये फूड खाओ, नया चीज। तो इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स ज्यादा ये है ना, रेसिपीज भी वैसा मिलता है, इंटरनेट में आप ढूंढोगे तो रेसिपीज भी उस टाइप का ही मिलता है, कि एवोकाडोस का मिलता है, वहाँ पे कीनुआ का मिलेगा। हाँ, तो बाहर का जो चीज तो है, अमरंथ, राजगीरा, ये सब खाओ, उसमें भी वही आपको न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। आई होप इसके ऊपर भी थोड़ा काम करेंगे कि कैसे होगा, कि लोगों को हेल्प करने के लिए। थैंक यू सुधा जी फॉर कमिंग, थैंक यू दीपिका फॉर कमिंग। हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस किया, आई गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। आई होप कि हम लोगों के ऑडियंस भी बहुत सारा कुछ आज जान चुके हैं कि कैसे हम लोगों को रेस करना चाहिए, हम लोगों को पेरेंटल जो पिवोटल रोल होता है वो क्या होना चाहिए फैमिली में,
एंड ये कोई ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनली जो जॉइंट फैमिलीज़ में होता है ये नहीं हो सकता है. टुडे तो हम लोगों ने सब देख लिया कि इन द जॉइंट फैमिलीज़ एंड न्यूक्लियर फैमिलीज़ जहाँ पे भी हो, यू कैन डू योर पेरेंटल रोल ए गुड वे, कि हम लोग फ्रीडम दे सकते हैं. सो दिस इज़ द टाइम वी शुड गिव फ्रीडम टू आवर चाइल्ड्स प्लेट सो दैट दे कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, और हम लोग अपना जनरेशन जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बहुत सारा स्ट्रॉन्ग बनते हुए देख सकते हैं. Stay tuned for our next podcast, and happy till then, happy Independence Day to all. Thank you so much.